سینئر صوبائی وزیر شرجیل انعام احمد نے عوام سے اپیل کی ہے کہ نئے سال کی آمد کی خوشی میں ہوائی فائرنگ نہ کریں۔ ان کی جانب سے کہا گیا کہ اپنی خوشی کے لیے انسانی جانیں لینے سے گریز کیا جائے۔ عاجز جمالی رپورٹ کریں گے۔ ایمن کی قوم کو نئے سال کی مبارکباد، عوام سے سال نو کی خوشی میں فائرنگ نہ کرنے کی اپیل بھی کر دی۔ محکمہ اطلاعات کے سوشل میڈیا ونگ میں پریس کانفرنس کرتے ہوئے شرجیل انعام احمد نے کہا کہ اپنی خوشی کے خاطر انسانی جانیں لینے سے گریز کیا جائے۔ تمام لوگ جو ہیں وہ اپنے نئے سال بھلے نئی خوشیوں کے ساتھ منائیں، لیکن برائے مہربانی کوئی بھی ایسا کام نہ کریں جو آپ کی خوشی کے لیے کسی اور کے لیے اذیت کا باعث بنے۔ میری گزارش ہوگی کہ کوئی ہوائی فائرنگ جو ہے وہ لوگ نہ کریں، اور ہمیشہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس ایریل فائرنگ وغیرہ سے جانی نقصان ہوتا ہے۔ انفارچونیٹلی آپ کیوں چاہتے ہیں کہ آپ اپنی کسی خوشی کے لیے کسی اور کی زندگی ختم کریں؟ سینئر وزیر نے بی آر ٹی ریڈ لائن پر گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے سامنے بہت ساری رکاوٹیں، چیلنجز اور مشکلات ہیں، تو 100 سال تک عوام کو سہولیات پہنچانے والے اس منصوبے کو کیوں بند کر دیں؟ ہم جو ہے وہ ٹائم سے پہلے چیزیں کمپلیٹ کر کے دے رہے ہیں، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے۔ یہ نہیں کہ میں نے کہا کہ جی بہت زبردست اسپیڈ سے کام چل رہا ہے، یس چیلنجز ہیں، لیکن کیا چیلنجز کو دیکھ کے ہم پروجیکٹ بند کر دیں؟ کیا چیلنجز کو مد نظر رکھتے ہوئے یہ جو پروجیکٹس بن رہے ہیں یہ پاکستان پیپلز پارٹی کی سندھ حکومت کی جانب سے کراچی کے شہریوں کے لیے اگلے 100 سال کی پلاننگ پہ بن رہے ہیں پروجیکٹ؟ شرجیل انعام احمد کا کہنا تھا کہ پی ٹی آئی ایک جانب مذاکرات کر رہی ہے تو دوسری جانب یہودی لابی کے ذریعے پاکستان پر دباؤ ڈال رہی ہے۔ ہم مذاکرات لیکن وہ منافقت کر رہے ہیں۔ کیمرامین شادب رضا کے ساتھ عاجز جمالی CT 21۔ اور ناظرین، نئے سال کی آمد کے موقع پر کراچی والے بھی آتش بازی کا سامان خریدنے میں مصروف ہیں۔ بازاروں میں رش اور گہما گہمی دیکھی جا رہی ہے۔ لوگ مختلف اقسام کے پٹاخے، رنگ برنگی راکٹ اور دیگر چیزوں کی خریداری کر رہے ہیں۔ اسی پر مزید تفصیلات جانیں گے اقصیٰ شیخ کی اس رپورٹ میں۔ سال نو کا جشن منانے کی تیاریاں عروج پر۔ پٹاخے، راکٹ اور جشن کا سامان مہنگا ہونے کے باوجود عوام کی دلچسپی قائم۔ آتش بازی کی دکانوں پر مختلف اقسام کے پٹاخے، رنگ برنگے راکٹ اور روشنیوں کا دیگر سامان دستیاب ہے۔ خریدار اپنی پسند کے مطابق اشیاء کا انتخاب کر رہے ہیں۔ دکاندار کہتے ہیں کہ اس سال آتش بازی کے سامان کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے، لیکن مہنگائی کے باوجود شہریوں کی دلچسپی میں کمی نہیں آئی۔ شہریوں کا کہنا ہے کہ آتش بازی کا سامان تو مہنگا ہے، لیکن سال نو کی خوشی میں یہ بھی برداشت ہے۔ مہنگائی کے باوجود شہریوں کا جوش و خروش دیدنی ہے۔ ہر کوئی امیدوں اور امنگوں کے ساتھ نئے سال کا استقبال کرنے کے لیے تیار ہے۔ اب آپ کو بتائیں، سال 2024 کے دوران مہنگائی نے شہریوں کے لیے 2 وقت کی روٹی کا حصول مشکل بنا دیا ہے۔ گندم کی پیداوار کم ہونے کے خدشات نے آٹے کی قیمتوں کو آسمان پر پہنچا دیا۔ آٹے اور گندم کی قیمتیں کیا رہیں، بتائیں گے وسیم افتخار اس رپورٹ میں۔ سال 2024 کی ابتدا میں 2.5 نمبر آٹے کی قیمت 123 روپے، جبکہ فائن اور چکی آٹے کی قیمت 130 روپے فی کلو تھی۔ تاہم گندم کی پیداوار کم ہونے کی افواہیں اوپن مارکیٹ میں گندم اور آٹا مہنگا کرنے کا سبب بنی، جس کے باعث 2.5 نمبر آٹا ہول سیل میں 125 روپے، فائن آٹا 133 روپے اور چکی کا آٹا 135 روپے فی کلو تک پہنچا، جبکہ ریٹیل میں 2.5 نمبر آٹا 150 روپے، فائن اور چکی آٹا 160 روپے کلو تک گیا۔ 74 روپے کی گندم ہے، اور یہی ہماری آج 2-3 میٹنگیں ہو چکی تھی، جو میں نے کہا کہ 82 روپے 2.5 نمبر آٹا ہونا چاہیے اور 90 روپے فائن آٹا ہونا چاہیے، جس کے اوپر کمشنر صاحب نے لسٹ نکال دی کہ یہ 90 روپے 2.5 نمبر بکے گا اور 95 روپے فائن آٹا۔ مجھے آپ بتائیں، یہ تو بک رہا ہے ہول سیل میں ہی، تو اس کے سسٹم کون چلا رہا ہے؟ کیا ہم کو یعنی ہول سیلر بھی لوٹے اور ریٹیلر بھی لوٹے؟ شہریوں کا کہنا تھا کہ سال بھر آٹے کی خریداری کے لیے مہنگائی کے سخت امتحان سے گزرنا پڑا۔ سب چیزیں مہنگی ہیں، آٹا ہے، چینی ہے، دال ہے، گھی ہے، سب چیز مہنگی ہے، غریبوں کی پہنچ سے باہر ہو گئی ہے۔ بہت زیادہ مہنگا ہو گیا، اس بار 2 کی جگہ 1 کلو لے رہا ہے۔ مہنگائی اتنی کس کے ساتھ رکھیں؟ آٹا یہ کہ 15-20 روپے مہنگا ہوگا، پہلے زیادہ آٹا کچھ مناسب دے رہے پہلے کے حساب سے، لیکن کنٹرول نہیں ان کے پاس کہیں۔ دوسری جانب آٹا بنانے والی کمپنیوں نے بھی عوام پر مہنگائی کے وار کرنے میں کوئی کسر باقی نہ چھوڑی۔ کمپنیوں کو اوسطاً 5 کلو کا تھیلا 800 روپے اور اس سے زائد، جبکہ 10 کلو کا تھیلا 1650 روپے سے زائد تک پہنچا۔
ताहम सिंध और पंजाब में गंदम की बम्पर पैदावार होने और दरामदी गंदम आने से आटे की कीमतों को रिवर्स गियर लग गया। साल के इख्तिताम पर ओपन मार्केट में दरामदी गंदम के नर्ख 70 रुपए और मुकामी गंदम के नर्ख 74 रुपए किलो हो गए। कैमरामैन आगा रफीक के साथ बसीम इफ्तिखार, सिटी 21। आपको बताएं कि कश्मीर कॉलोनी से महमूदाबाद जाने वाली अहम सड़क चांदनी चौक के मुकाम से टूट फूट का शिकार है। सड़क पर गड्ढे पड़ने से गाड़ियों को गुजरने में दुश्वारी का सामना है। इसी हवाले से रिपोर्ट करेंगे उसामा मलिक। गड्ढे, धूल मट्टी और मलबे का ढेर। कराची की मुख्तलिफ सड़कें मरम्मत की मुंतज़िर। कश्मीर कॉलोनी से महमूदाबाद जाने वाली मरकजी सड़क भी तबाही के दहाने पर पहुंच गई। सड़क पर मौजूद गड्ढे और उनसे उठती धूल मट्टी ने शहरियों का सांस लेना मुहाल कर दिया। शाहरा के टूट फूट से भी राहगीरों को मुश्किलात का कहते हैं कि सड़क की खस्ता हाली की वजह से गाड़ियां आए दिन खराब होती रहती हैं, हादसात भी मामूल बनते जा रहे हैं। मुतल्लिका हुक्काम को मुतअद्दिद दरखास्तों के बावजूद कोई सुनवाई नहीं हुई। भाईजान हम इधर आते हैं सेल करने अपनी कंपनी की तरफ से, आप खुद देख सकते हैं ऐसा ख़राब रोड है और गाड़ियाँ भी खड़ी हुई होती हैं, बिल्कुल तंगी होती है गाड़ी निकालने में। 20-20 मिनट फंसे रहते हैं रोड के चक्करों में, फिर अगर कोई बड़ा ट्राला गुजर जाए इधर से तो और फंसे रहते हैं। ये सूरत हाल है इस रोड की। अब आप तो हम तकरीबन यहाँ 20 साल से ही काम कर रहे हैं यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह, और यहाँ की सूरत हाल तकरीबन यकसा ऐसे ही रहती है। कुछ अरसा बना देते हैं, फिर वो ऐसे रफ मतलब काम होता है। बहरहाल ये जो इन्होंने अच्छा माशाल्लाह काम किया हुआ है कि खुद ही हमें मिट्टी डालनी पड़ी। आप देख सकते हैं खुद ही हमने मिट्टी डाली। यहाँ से ये नाला बंद हुआ है, तकरीबन साल से ऊपर टाइम हो गया होगा। शहरियों ने सड़क की फौरी मरम्मत का मुतालबा किया है ताकि उनकी मुश्किलात कम हो सकें। कैमरामैन अब्दुल मन्नान के साथ उसामा मलिक, सिटी 21। फिशरी पार्किंग पर कब्जे की कोशिश। ट्रांसपोर्टर्स गुड एसोसिएशन ने तबले जंग बजा दिया। सदर तारिक गुजर कहते हैं जंग ट्रांसपोर्टर्स की लीज शुदा है, जबकि कराची पुलिस चीफ नोटिस में कब्जा कबूल नहीं करेंगे। काविश मेमन की रिपोर्ट देखें। ट्रांसपोर्टर्स के मसाइल, ट्रांसपोर्टर बरादरी सर जोड़कर बैठ गई। ट्रांसपोर्टर्स गुड्स एसोसिएशन का हंगामी इजलास, मसाइल न होने की सूरत में एहतजाज की धमकी। सदर ट्रांसपोर्टर्स गुड्स एसोसिएशन तारिक गुजर ने कहा कि किसी ने फिशरी पार्किंग पर कब्जे की कोशिश की तो फिर लड़ाई होगी। ये जगह ट्रांसपोर्टर्स की लीज शुदा है। कराची पोर्ट को हम टैक्स अदा करते हैं। एडिशनल आईजी से दरख्वास्त है फौरी एक्शन लें। टीडीए का जो मसला है, हम आपके मसले के लिए वो एडिशनल आईजी के पास जाना पड़ता है, आईजी के पास जाना पड़ता है, फेडरल मिनिस्टर, सूबाई मिनिस्टर, या कुछ ऐसे इदारे भी हैं जो मलिक शहजाद साहब ने इशारा किया है, तो हम कोशिश करते हैं कल उनसे भी रब्ता करें और उनको भी बताएं कि ये हमारा एडिशनल आईजी साहब को ये दें कि ये अगर फिशरी पे ये हमारी पार्किंग पे अगर किसी ने कब्जा करने की कोशिश की तो ये लड़ाई झगड़ा बनेगा और फितना फसाद होगा, नुकसान होगा। सदर कार कैरियर एसोसिएशन इमदाद हुसैन नकवी बोले, आर्टिकल 279 पुलिस का डंडा है जो ट्रांसपोर्टर्स के खिलाफ इस्तेमाल होता है। पुलिस वाले FIR भी करते हैं, फिर हजारों रुपए रिश्वत भी लेते हैं। सदर डंपर ट्रक ट्रांसपोर्टर्स लियाकत महसूद ने कहा कि शोर शराबे की जरूरत नहीं, मुज़ाकरात से मसाइल हल होंगे। आर्टिकल 279 पुलिस के हाथ में पकड़ा हुआ वो डंडा है जो हम ट्रांसपोर्टर को मारते हैं। कभी हमें रॉन्ग साइड के लिए इसको इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी इसको ओवर स्पीड पे इस्तेमाल कर लेते हैं, कभी गलत जगह पर पार्किंग में इस्तेमाल कर लेते हैं। पुलिस के पास एक फ्री हैंड है 279 और वो लगा देते हैं, उसके खिलाफ FIR भी हमारे खिलाफ कर देते हैं, हमें बंद कर देते हैं, फिर हजारों रुपए हमसे लेकर वो मामला रफा दफा हो जाते हैं। ये रिश्वत का एक बेहतरीन शिक है। हमारा एक मसला इदारे के साथ टेबल पे हल होगा, लेकिन तो आगे शोर शराबत का जरूरत नहीं। अगर टेबल पे हल नहीं होगा तारिक भाई, इंशाल्लाह मैं इधर बात भी नहीं कर दूंगा। जब माली नुकसान भी आ जाएगा और जानी नुकसान भी आ जाएगा, रोड के ऊपर दम भी आएगा, इंशाल्लाह मैं जितना ट्रांसपोर्टर है यहाँ से लेकर इस्लामाबाद तक इंशाल्लाह मैं आपके साथ और शाना बशाना भी करा। साबिक रुकन सिंध असेंबली मलिक शहजाद अवान ने कहा कि फिशरी पार्किंग के मामले पर वफाकी वजीर बहरी उमूर के सामने तहफ़्फ़ुज़ात रखेंगे। सदर ऑयल टैंकर एसोसिएशन मीर शम्स शवानी कहते हैं कि डंडे और एहतजाज के जरिए मसाइल हल कराने की सलाहियत रखते हैं। आप राय अमल बनाओ, ये नहीं देखो कि रात के 3 बजे है, 2 है, 4 है। आप हमें जो बताओगे लबैक है, पैसा लगता है, एहतजाज होता है, गिरफ्तारी होता है। इंशाल्लाह पहला ये मेरा हाथ होगा आपके लिए, बाकी पे ट्रांसपोर्टरों का हाथ होगा। बाकी तमाम तर ट्रांसपोर्टरों का मैं शुक्रगुजार हूँ। इस पे भी आप गवर्नमेंट को अल्टीमेटम दें
और फेडरल के जो मिनिस्टर हैं, अपना पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर, उनसे भी मीटिंग हमें करनी चाहिए। मिनिस्टर ट्रांसपोर्ट है शजीद इनाम मेमन, उनसे हमें मिलना चाहिए। और पोर्ट्स के जो चेयरमैन हैं, जब पोर्ट एंड शिपिंग के मिनिस्टर से मीटिंग हो तो उस मीटिंग में उनको पाबंद करें कि आप जो पोर्ट्स के चेयरमैन हैं, जो केपीटी के चेयरमैन हैं, इनको भी बुलाएं। ट्रांसपोर्टर्स का कहना है कि अगर इंतजामिया ने मसाइल हल ना किए तो एहतजाज पर मजबूर होंगे। कैमरामैन वाहिद खान के साथ काबिश में सिटी 21। आगे बढ़े और आपको बताएं कि दरियाए सिंध पर कैनाल्स का मंसूबा, सिंध यूनाइटेड पार्टी की भूख हड़ताल खत्म हो गई। जैन शाह कहते हैं कि दरिया बचाओ कमेटी के तहत पंजाब और इस्लामाबाद में भी एहतजाज किया जाएगा। आजिज जमाली की रिपोर्ट देखें। टीपी की जानिब से प्रेस क्लब के बाहर भूख हड़ताल और दूसरे रोज भी जारी रही। इस मौके पर सिंध यूनाइटेड पार्टी के सदर जैन शाह ने कहा कि 9 जमातों के इत्तेहाद पर मुश्तमिल दरिया बचाओ कमेटी एहतजाज जारी रखेगी। पंजाब और इस्लामाबाद में भी एहतजाज किया जाएगा। मुल्क से बाहर भी जो हमारी कम्युनिटीज़ हैं उनको भी ये प्रेशर दिलवाएं कि ये स्कीमें बंद की जाएं। वो इदारे जो इनको फाइनेंस करेंगे उनसे भी रब्ता करेंगे, इनको फाइनेंस ना करें। लेकिन क्योंकि ये सिंध के मुस्तकबल का और इंडस के जो है लिविंग इंडस हमें बचानी है, इसलिए हम इसके लिए मुल्क में और मुल्क से बाहर हर महाज पे लड़ेंगे। ग्रैंड डेमोक्रेटिक अलायंस के सेक्रेटरी जनरल डॉक्टर सफदर अब्बासी ने भी कैंप का दौरा किया और कहा कि जरूरत पड़ी तो सिंध पंजाब सरहद पर धरना दिया जाएगा। अगर गुड्डू बैराज में पानी नहीं पहुंचा तो बलूचिस्तान को कहां से पानी मिलेगा? और जीडीए वैसे अपनी अलायंस के एसयूपी समेत तमाम जितनी पार्टीज हैं वो सब इस कैनाल के सिस्टम को भरपूर उसकी मुखालफत कर रही हैं। वजह सिर्फ ये कि हमें ये समझ नहीं आती कि सिंध की आबाद ज़मीनों को बर्बाद करके, गैर आबाद करके आप किस तरह कोई ज़मीन जो आबाद करने जा रहे हैं। एहतजाज से कराची बार के सदर आमिर बड़ाइच, रोशन बड़ो और दीगर रहनुमाओं ने भी खिताब किया। आखिर में जैन शाह और सफदर अब्बासी ने कारकुनों को जूस पिलाकर भूख हड़ताल खत्म करवा दी। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। यहाँ कारोबार की दुनिया से खबर शामिल करें और अब आपको बताएं स्टॉक मार्केट में साल के आखिरी रोज कारोबारी का मनफी इख्तिताम हुआ है। 100 इंडेक्स 132 पॉइंट्स की कमी से 1,15,126 की सतह पर बंद हुआ है। डायरेक्टर स्टॉक मार्केट अहमद चनॉय कहते हैं कि नया साल स्टॉक मार्केट के लिए मजीद तेजी का साल साबित होगा। तफसीलात अयाज राना की इस रिपोर्ट में। मार्केट में दिन भर तेजी के बाद मनफी इख्तिताम। कारोबार के आगाज के बाद से पूरे दिन तेजी का रुझान रिकॉर्ड किया गया। दिन के इख्तिताम से कबल मार्केट में मुनाफे का प्रेशर नजर आया। दिन का इख्तिताम 132 पॉइंट्स की कमी से हुआ। डायरेक्टर स्टॉक एक्सचेंज अहमद चुनाई बोले, हुकूमत के माशी इकदामात के बाइस शरह सूद में कमी हुई। महंगाई कम होने से सरमायाकारों ने स्टॉक मार्केट का रुख किया। साल 2025 बेहतरीन साल होगा और जो नए साल का आगाज़ होगा वो बहुत पॉजिटिविटी मोड के साथ होगा। जिन्होंने कैश अपने पास रखा हुआ है उन्होंने अगले साल बाइंग ज़रूर करनी है और वो मार्केट में आएंगे। मैं समझता हूँ कि अच्छी खासी बाइंग जो है वो अगले हफ्ते हम देख सकते हैं और मार्केट की पॉजिटिविटी भी जो है वो अपनी जगह बरकरार रहेगी। तो इसमें दो चीज़ें बड़ी अहम हैं कि आगे भी एक्सपेक्टेशंस हैं कि हमारा बेसिक डिस्काउंट रेट जो है वो और नीचे जाएगा। ये भी एक्सपेक्टेशन है कि डॉलर भी इंशाल्लाह जो है वो पाक रुपीज़ जो है डॉलर के मुकाबले में अप्रिशिएट होगा। आज 464 कंपनियों के 1 अरब 23 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ, जिसकी मालियत 44 अरब 13 करोड़ रुपए से जायद रही। शेयर्स की लेन देन के दौरान 234 कंपनियों के शेयर्स की कीमतों में इजाफा और 188 शेयर्स की कीमतों में कमी रिकॉर्ड की गई। कैमरामैन काशिफ अली के साथ अयाज राना, सिटी 21। आपको बताएं सनतों के लिए खतरे की घंटी बजने लगी। 40 MGD पानी फराम करने वाले ऑपरेटर जद में आगे हैं। ग्राउंड वाटर ऑपरेटर एसोसिएशन के सदर कहते हैं कि सब सॉइल के लाइसेंस में ताखीर परेशानी का बाइस बने रही। रिपोर्ट करेंगे एहसन अब्बासी। सब सॉइल के लाइसेंस में ताखीर सनतों के लिए खतरे की घंटी बज गई। ग्राउंड वाटर ऑपरेटर्स एसोसिएशन के सदर लियाकत खान कहते हैं कि 30 सालों से सनतों को जेर जमीन से पानी निकाल कर फराम कर रहे हैं, जिसके लिए करोड़ों रुपए के सिस्टम नस्ब किए गए। लाइसेंस के अजरा की ताखीर मुसलसल नुकसान का सबब बन रही है। वाटर कॉरपोरेशन ने हमें लाइसेंस इशू करे, जो भी सारी फॉर्मेलिटीज़ है हमने पूरी करी, उसके बावजूद बिना कोई नोटिस दिए बगैर किसी रीज़न के वो तमाम लाइसेंस कैंसिल किए गए। अब जब वो लाइसेंस रिवोक किए गए हैं तो उसके बाद एक इशू उठा DC की तरफ से, दूसरे इदारों की तरफ से कि भाई आपके लाइसेंस तो रिवोक हो गए। तो ये मौका जो है वाटर कॉरपोरेशन की तरफ से फराहम किया गया है और ये जो भी नुकसानात हो रहे हैं सारे उसी के उसमें आते हैं।
जनरल सेक्रेटरी वैस मलिक ने बताया कि तमाम कानूनी दस्तावेजात जमा करवाए गए थे ताकि लाइसेंस हासिल किए जाएं, जो जारी होने के बाद एक ही हफ्ते में मनसूख कर दिए गए। उन्होंने कहा कि साइट इंडस्ट्रीज को 40 मिलियन गैलन पानी का 85% पानी ऑपरेटर्स फराहम कर रहे हैं। 40 MTD में से अगर आप गए तो 80, 84, 85% पानी जो है ना वो इन्हीं सबसॉइल्स ऑपरेटर्स में से सप्लाई होता है, जो ग्राउंड रियलिटी है। और इसमें बहुत दफ़ा बहस हो चुकी है, बहुत सी चीज़ें लोगों को उसके बारे में पता भी हैं। अब अगर आप उसके पास कोई अल्टरनेट है तो भाई इसको आप एक डिफ़ाइन कर दें। अल्टरनेट नहीं है तो हमें इस पर सपोर्ट तो की जाए ना। हम तो यही कह रहे हैं कि अच्छा चलें, आपने एक जगह को मिसालें तोड़ना है या आपने उसको बंद करना है, आप एक नोटिस भेज दें। ग्राउंड वाटर ऑपरेटर्स का कहना है कि रोजाना की बुनियाद पर होने वाले ऑपरेशन बेरोजगारी और सनतों को अरबों रुपए का नुकसान पहुंचा रहे हैं, जिस पर फौरी नजरसानी होनी जरूरी है। एमडी वाटर कॉर्पोरेशन सूरत हाल को संजीदगी से लें और कानूनी तौर पर गाइडलाइन फराहम करें। कैमरामैन रिजलान छिपा के साथ एहसन अब्बासी, सिटी 21। आपको बताएं कि माँ और बच्चे की सेहत ग़िज़ाई किल्लत के हवाले से प्रेस क्लब में सेमिनार का इनेकाद किया गया। यूनिसेफ, लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम, सेव द चिल्ड्रन और दीगर शोबों के अफसरान ने शिरकत की। तिबी माहिरीन का कहना है कि हमारे माशरे में माएँ और लड़कियाँ ग़िज़ाई किल्लत का शिकार हैं। मौजूदा वसाइल को ही बेहतर अंदाज से इस्तेमाल किया जाए। मज़ीद तफसीलात जानेंगे इब्राहिम रेन की इस रिपोर्ट में। सिंध भर की माओं और बच्चों की सेहत बेहतर बनाने का मिशन। कराची प्रेस क्लब में सेहत के मौजू पर अहम सेमिनार मुनक़िद हुआ, जिसमें यूनिसेफ, लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम, सेव द चिल्ड्रन और न्यूट्रिशन प्रोग्राम के अफसरान शरीक हुए। लेडी हेल्थ वर्कर्स प्रोग्राम की डायरेक्टर डॉक्टर फरहाना मेमन ने कहा कि ख़वातीन को सेहतमंद बनाने और दूध पिलाने के हवाले से आगाही देने की ज़रूरत है। डब्बे वाला दूध मुख्तलिफ बीमारियों का सबब बन रहा है, क्योंकि अगर हम बच्चे को 6 माह तक अपना दूध पिलाएगी माँ और उसको कुछ नहीं देगी तो ये बिल्कुल प्रूवन चीज़ है कि ना उसको डायरिया होगा, ना उसको नमूनिया होगा, ना उसको कोई और बीमारियाँ होंगी। तो वो जो ख़र्चा जो कि उन चीज़ों पे लगता है वो सब बचेगा। वो बच्चा एक सेहतमंद बच्चा होगा, वो बच्चा इस आगे चल के इस मुल्क की तरक्की के लिए काम करेगा। उसका जो ब्रेन है, जब वो बच्चा एकदम से जब पहली जितनी हम कहते हैं एज़ अर्ली एज़ पॉसिबल, यानी जितनी जल्दी आप बच्चे को दूध पिलाएंगे उतने उसके ब्रेन के सेंटर्स खुलते हैं। सेव द चिल्ड्रन के आज़म कियानी और शीज़ा मजीद ने कहा कि दुनिया भर में सेव द चिल्ड्रन काम कर रही है। पाकिस्तान में भी माओं और बच्चों की सेहत के लिए किरदार अदा किया जा रहा है। और आज मीडिया के थ्रू जो है वो हम एडवोकेसी कर रहे हैं ताकि एक आम आदमी तक, एक आम घराने तक और एक आम खातून तक ये जो है मैसेज जाना चाहिए कि ब्रेस्ट फीडिंग की प्रमोशन हो और जो पाउडर मिल्क है उसको उसकी इन्फोर्समेंट होनी चाहिए, उसको डिस्करेज किया जाए। हम बेसिकली माँ के दूध की अफादियत के ऊपर हमारा फोकस है कि हम कैसे ब्रेस्ट मिल्क की प्रमोशन करवा सकते हैं, उसकी इम्पोर्टेंस क्या है, और मीडिया सेंसिटाइज करें हमारी पूरी कम्युनिटीज़ को ताकि वो इसकी इम्प्लीमेंटेशन कर सकें। मारीन ने कहा कि अब आवाम में आगाही की बहुत ज़रूरत है। लड़कियों और ख़वातीन की सेहत का भी ख्याल रखना होगा। कैमरामैन जहाज़ेब के साथ इब्राहिम रेन, सिटी 21। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में एक रोज़ा जॉब फेयर का इनेकाद किया गया, जिसमें मल्टीनेशनल कंपनियों की जानिब से 50 से ज़ायद स्टॉल्स लगाए गए हैं। रिपोर्ट देखें सैयद ज़ुबैर राशिद। तालीम के साथ रोजगार की राहें खोलने की मुनफरिद काविश। उस्मान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी ने जॉब फेयर सजा लिया। जामिया UIT के जॉब फेयर में IT और ई-कॉमर्स समेत मुख्तलिफ शोबों की 50 से ज्यादा कंपनियों ने शिरकत की। तलबा ने जॉब फेयर के इनेकाद को लाजमी करार दिया। ये हमारे फ्यूचर के लिए और हमारे करंट स्टडीज़ के दोनों के लिए ज़रूरी है। इससे हमें बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है और बहुत ज़्यादा एक्सपोजर मिलता है हमें कि डिफरेंट प्रोजेक्ट्स हम किस तरह बनाएं। यहाँ पर बहुत सारी प्रोजेक्ट्स की अपॉर्चुनिटीज़ मिली हैं, जिसमें AI बेसिस हमने यूज़ किए हुए हैं, फर्दर टेक्निकल चीज़ें हमने यूज़ की हुई हैं, और अभी हमारा जो यहाँ पर एक कैरियर फेयर भी लगा हुआ है। कंपनीज के जब CEOs आते हैं इंटर्नशिप ऑफर करने, तो ये हमारे लिए काफ़ी अच्छा एक अपॉर्चुनिटी हो जाती है कि इंटर्नशिप वो हमारी टैलेंट देखकर। सेकंड ईयर और थर्ड ईयर के तलबा ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट तैयार किए, जिनका कहना था कि प्रोजेक्ट की तैयारी मुनफरिद तजुर्बा रही। हर चीज़ थ्योरेटिकली आसानी लगता है, प्रैक्टिकली करना मुश्किल लगता है, लेकिन यह है कि उतना मुश्किल नहीं था क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर था, यूनिवर्सिटी ने भी दायरा उस हिसाब से हमें दिया था। प्रैक्टिकल इसलिए बहुत ज़्यादा डिफरेंट था क्योंकि थ्योरी में आप सिर्फ फार्मूलाज वगैरह पढ़ते हैं, यहाँ पे आप उसके साथ इम्प्लीमेंट भी कर रहे हैं और आपको अपनी परफेक्शन वगैरह सब नोट करनी है। यूनिवर्सिटी का बहुत शुक्रिया अदा करेंगे कि वैसे इवेंट्स करवाते हैं और अच्छा होता है ये स्टूडेंट्स के लिए। शेखुल जामिया डॉक्टर इंजीनियर वलीउद्दीन का कहना था कि यूनिवर्सिटी तलबा को रोजगार के मौके फराहम करने के लिए कोशा है। कैमरामैन इमरान अहमद के साथ सैयद ज़ुबैर राशिद, सिटी 21।
آپ کو بتائیں کہ سلیم حبیب یونیورسٹی میں 2 روزہ 26ویں انٹرنیشنل ملٹی ٹاپک کانفرنس کا دوسرا روز سعودی عرب سمیت مختلف ممالک کے مندوبین نے شرکت کی ہے. اسی حوالے سے رپورٹ کریں گے سید زبیر راشد. سلیم حبیب یونیورسٹی میں 2 روزہ کانفرنس کا اہتمام. شعبہ فارماسیوٹیکل سائنس سے وابستہ طالب علموں نے شرکت کی. یونیورسٹی میں مختلف پروجیکٹس پر مبنی معلومات آویزہ کی گئی. رجسٹرار ڈاکٹر حسین نے کہا کہ کانفرنس شعبہ طبیعیات کے جدید تقاضوں کو پورا کرتی ہے، جس میں مصنوعی ذہانت اور آئی ٹی کے استعمال سے متعلق آگاہی فراہم کی گئی. یہ 2 روزہ جو انمیک کانفرنس ہو رہی ہے، یہ 26 انمیک کانفرنس ملٹی ٹاپک کانفرنس جو پاکستان میں ہو رہی ہے، یہ IEEE کے تحت جو ہے وہ کراچی چیپٹر کے کولیبریشن کے ساتھ، سندھ HEC کے کولیبریشن کے ساتھ اور مختلف اور آرگنائزیشنز کے کولیبریشن کے ساتھ ہو رہی ہے. اور اس میں دنیا بھر کے ایکسپرٹس جو ہے وہ ٹیکنالوجی پہ، AI پہ اور انجینئرنگ پہ بات کر رہے ہیں. سلیم حبیب یونیورسٹی کے اندر یہ پہلی کانفرنس ہو رہی ہے جس کے اندر پورے دنیا سے، نہ صرف ہمارے ملک سے بلکہ پوری دنیا سے لوگ آئے ہیں اور انہوں نے پارٹیسپیٹ کیا ہے. اگر ہم صرف پاکستان کی ہی بات کریں تو پاکستان میں 26 یونیورسٹیز میں اس نے پارٹ لیا ہے، اور اگر ہم انٹرنیشنلی بات کریں تو انٹرنیشنل 16 یونیورسٹیز نے پارٹ لیا ہے. طلبہ نے کانفرنس کے انعقاد کو خوشائند قرار دے دیا. میرے حساب سے یہ جو کانفرنس ہے یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے، اور ہم بہت زیادہ تھینکفل ہیں ڈاکٹر انعام آفاق کا، سلیم حبیب یونیورسٹی کے، کہ انہوں نے ہمیں یہ موقع دیا کہ ہم جو ہے یہ انمیک کانفرنس آرگنائز کرا سکیں. اس میں بہت سے انٹرنیشنل لوگ آئے ہیں جن سے ہماری نیٹ ورکنگ بہت اچھی ہوئی. اور ہم پورے 4 سال میں ہمیں سلیم حبیب یونیورسٹی نے اتنے مواقع دیے ہیں اس طرح کے ایونٹس کرا کے. ہمیں نیٹ ورکنگ اپرچونیٹیز ملی، ہمیں اپنے پروجیکٹ ڈسپلے کرنے کی اتنی اپرچونیٹیز ملی ہے، ہمیں انٹرنشپس کی اتنی اپرچونیٹیز ملی، ہمیں جاب آفرز آ چکی ہیں. کشمیر سے تعلق رکھنے والے بایو میڈیکل انجینئرنگ کے طالب علم نے ریمز گلو کے نام سے شوگر لیول کو چیک کرنے کے لیے بغیر خون نکالے مشین تیار کر لی. تو میں نے ایک میڈیکل ڈیوائس بنائی ہے جس کا نام ہے رمز گلو. رمز کہتے ہیں اشارے کو، کوئی پوشیدہ چیز. گلو ایک ایسی ڈیوائس جو کہ آپ کے بلڈ شوگر لیول کو سگنلز بتا سکے. تو بیسکلی اس میں نے مشین لرننگ اور بایو میڈیکل انجینئرنگ کی اپلیکیشنز کو یوز کیے ہوئے ایک ایسی مشین بنائی ہے جس سے آپ اپنا بلڈ شوگر لیول بغیر خون نکالے میجر کر سکتے ہیں. کانفرنس کے دوسرے روز مختلف ٹیکنیکل سیشنز منعقد کیے گئے. کیمرہ مین عمران کے ساتھ سید زبیر راشد، 321.